Hello friends, today we are going to study how to find area of a triangle. 6 different types we are going to study. Today's lecture is going to be very interesting. Let's have a look on the first type on the board. There is a triangle ABC, as it is seen, triangle ABC, and this BC is given as 4 centimeter, and this side A, let's suppose this point is D. This AD is given as 2 centimeter, and we need to find area of triangle ABC. First of all, we must know which formula can be used. Let me write the formula. Area of triangle, formula used is half into base into height. This is the simplest form and simplest formula, half into base into height. So what is base here? Base is BC. And what is height? Height means perpendicular. Perpendicular is AD. Okay. So value of BC given is 4 centimeter. So I am writing 4 here. And height AD, it is given as 2 centimeter. This 2 and 2 will be cancelled, and we will be getting final answer as 4. Do remember, we need to write units. It is centimeter square. Since side is given in centimeter, so area of triangle will be in centimeter square. So I am repeating, half into base into height. This is the formula we have used, and just putting the values of BC and AD directly we can find area of triangle. Let's move to next type. Let us see second type now. Look at this kind of triangle. Triangle ABC is there. अब इस ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेंगे. वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट मैनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम कि यहाँ पे हाइट कहाँ आएगी, वेयर द हाइट वुड बी इन दिस डायग्राम. तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान से समझते हैं. इसकी हाइट हम यहाँ से काउंट करेंगे. हाइट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर नॉर्मली हाइट की बात करूँ, हाइट क्या है? ज़मीन से लेकर ऊंचाई कितनी है, मेनली ऊंचाई चेक करनी है हमने. तो यहाँ पर हाइट क्या होगी? हाइट विल बी, आप ए से नीचे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इधर से इसको एक्सटेंड कर दीजिए, और ये रहा पॉइंट डी. सो दिस ए डी विल गिव मी हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी. बस इतनी सी कंफ्यूजन की वजह से समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक द प्रॉब्लम्स. तो बहुत आसान है. बी सी लेट्स सपोज सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इट इज़ गिवन एज 4 सेंटीमीटर and height AD is given as 2 centimeter. So what is the difference in this question and last question? Last question में height triangle के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे height हमें triangle के बाहर बनानी पड़ रही है. So this is the major difference between these two triangles. Whereas solution remains same. How can I do area of triangle ABC? It will be given by half into base into height. Else everything is same. Base is 4, height is 2, 2 and 2 cancelled, we get 4 centimeter square as answer. तो पिछले और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है मैं फिर से बता देता हूँ. उसमें परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर था, यहाँ पे हाइट जो है हम ट्रायंगल के अंदर नहीं बना रहे हैं, हाइट जो है बाहर बना रहे हैं, एडी जो यहाँ पे नजर आ रहा है. तो आई होप यू आर क्लियर विद बोथ द टाइप्स. Let us move to next type of triangle. Yes, right angled triangle. Right angled triangle is there on the board. Have a look. ABC, where angle B is 90 degree. Right angled triangle कौन सी triangle होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो. और अगर ये एंगल B 90 डिग्री है तो दैट मीन्स BC हमारा बेस और AB हमारी हाइट. सो वन इज बेस, अनदर इज अवर हाइट. सो एक ट्रायंगल इस तरह की भी हो सकती है. सो फॉर्मूला रिमेन सेम स्टिल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
It is given by half into base into height. What is base? BC here, and height is AB. So we just need to put the values. BC is 10 and AB is 5. So we get 5 into 5, 25 centimeter square. So 3 types we have covered. First one जिसमें perpendicular triangle के अंदर हो, सेकंड परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर, हाइट हमने बाहर बनाई थी, और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, अगर एक एंगल 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर ही आ जाए तो हाइट और बेस यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द 3 टाइप्स. लेट्स मूव टू फोर्थ टाइप नाउ. Our next type of triangle is equilateral triangle. It is there on the board. Screen पे नजर आ रही है triangle ABC. First of all, we should know what is an equilateral triangle. Equilateral triangle होती क्या है? एक ऐसी triangle जिसकी सभी sides बराबर हों और सभी angles बराबर हों. The triangle having equal sides and equal angle measures 60 डिग्री एंगल. अगर एंगल इक्वल है तो सभी एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे. सभी साइड्स हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? ये ध्यान से जरूर देखना है फॉर्मूला. फॉर्मूला इज √3/4 साइड स्क्वायर. सो दिस इज डिफरेंट देन आवर प्रीवियस 3 केसेस. पिछले तीनों से डिफरेंट है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज √3/4 साइड स्क्वायर. सो इट इज वेरी इजी. कैसे करेंगे? √3/4 एज इट इज. साइड स्क्वायर, साइड कितनी दे रखी है? इट इज 5 सेंटीमीटर. सो जस्ट पुट 5 स्क्वायर इज 25. So finally we can write our answer as 25/4 √3. क्योंकि ट्रायंगल है तो यूनिट कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मेन चीज इसमें क्या है? फोर्थ पार्ट में ये फॉर्मूला याद रखना. वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर. आई होप यू आर क्लियर विद दिस मेथड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप. लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में और पिछले ट्रायंगल्स में डिफरेंस क्या है? इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं. इसमें हमारे पास हाइट नहीं है और ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तीनों साइड्स डिफरेंट हैं. ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर डिफरेंट. वन इज 5 सेंटीमीटर, वन इज 6 सेंटीमीटर एंड वन इज 7 सेंटीमीटर. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा. फॉर्मूला नेम है हीरोन्स फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला. और फॉर्मूला क्या होता है? आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S into S minus A, S minus B and S minus C. Now what is S? S is semi perimeter. पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होता है? तीनों साइड्स को ऐड करना. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ऑब्वियसली सेमी का मतलब हाफ. तो सेमी पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए. यानी कि A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2. ये जो A, B और C है ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं. एक साइड को A सपोज करेंगे, एक को B, एक को C, और यहाँ पर भी तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. एडिंग ऑल द साइड्स डिवाइडिंग बाय 2 गिव्स अस सेमी पेरीमीटर. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड सेमी पेरीमीटर. Directly I am going to use this formula. What is the value of A? Let us suppose this is A, this is B and this side is C. So value of A is 7, B is 5
एंड सी इज 6 डिवाइडिंग बाय 2। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 7 + 5 12 + 6 18, we get 18 by 2 and finally we get 9. So value of S we are getting 9. So what we need to do now, once we have got S is equal to 9, we are going to use this formula area of triangle, right? So let us use this formula and let us see what answer we will get. बहुत ही आसान है, डायरेक्टली इस S की वैल्यू जो 9 आई है इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो देखते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके क्या आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला नाउ। वैल्यू ऑफ S इज 9, then 9 minus value of A is 7, then 9 minus 5 and at last 9 minus 6. So this is what I am going to use. Our next step, 9 as it is, 9 minus 7 2, 9 minus 5 4 and 9 minus 6 3। तो क्या बनेगा, इस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, वो भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, ये 2 और 3। सो आवर फाइनल आंसर इज 3 × 2 6, 3 × 2 6। सो 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यूनिट्स उसके स्क्वायर में होते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दिस फॉर्मूला इज हेरोन्स फॉर्मूला। तीनों साइड्स गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा के बड़े आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट टाइप ऑफ टुडे। सो टुडेज लास्ट टाइप, जब हमें ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच वाला एंगल भी गिवन हो। व्हेन वी आर गिवन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल मेड बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन। लुक इनटू द डायग्राम। AB 4 सेंटीमीटर गिवन है, AC 5 सेंटीमीटर गिवन है और इनके बीच वाला एंगल 30 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इट विल बी गिवन बाय हाफ AB साइन थीटा। ये ध्यान रखना है, हाफ AB साइन थीटा। A मतलब एक साइड को A सपोज कर लो, एक साइड को B। One side, let's suppose we are supposing this as A and this side as B. So what is the value of A? It is 4. Value of B, it is 5. And then sine theta means what is the angle? Sine 30 degree. This is cancelled. 5 into 2. Let me write it as it is. Value of sine 30 is 1 by 2. So this 2 and this 2 is also cancelled. We get 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान है। तो आज हमने 6 केसेस पढ़े। वी हैव स्टडीड 6 केसेस टुडे। तो एक बार उनको गो थ्रू दोबारा करवा देते हैं। फर्स्ट टाइप हमने ये पढ़ी थी जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के अंदर ही परपेंडिकुलर गिवन हो। सेकंड टाइप हमने पढ़ी थी जब हाइट हम ट्रायंगल के अंदर नहीं ट्रायंगल के बाहर मेजर कर रहे थे। और थर्ड करी थी राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों में हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया। फोर्थ जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन हो यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो तो √3/4 साइड स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। फिफ्थ नंबर, अगर हमें ट्रायंगल में सभी साइड्स डिफरेंट या अलग अलग गिवन हैं लेकिन कोई भी एंगल नहीं गिवन है, ना ही परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया, वी यूज्ड हेरोन्स फॉर्मूला √S इंटू S-A, S-B, S-C वाला। और सिक्स्थ, जब हमें कोई भी दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच वाला एंगल गिवन हो तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल रहे थे, हाफ AB साइन थीटा। तो ये 6 केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। हर क्लास में हर लेवल पे ये काम आएंगे। आई होप आपको सब समझ भी आए होंगे एंड यू हैव एंजॉयड द वीडियो ऑल्सो। तो इसी तरह से हमारे पेज को और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।